Thank you very much, sir, for your words of blessing. And now I would like to invite one of the dynamic personality, Professor Vijay Singh Rathod, sir, for enlighten us with today's topic, Live and Young Forever with DNA computing, cloud computing, and cloning. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you so much, the CSI Udaipur chapter, for giving me this opportunity to share my views with you. And thanks to Dr. A.K. Naik for delivering such a nice inaugural speech and encourage all of us to do better than the best. And as Dr. Naik sir very well said that CSI Jaipur chapter from its inception has been doing very nice things, because I am also in touch with the Jaipur, this Udaipur chapter for last more than 10 years, and they people are doing lots of activities, lots of events, and then they are also participating in different events of not only CSI but ACM, IEEE, and all other like societies they are also representing, and they are representing the Rajasthan very well in front of the nation and in front of the world as well. And I think 2 years back they were also supposed to organize that CSI convention, but due to some technical reasons it could not happen. But I think in the next near future, definitely I would like to request Dr. Nayak sir and other CSI, the national execom, that they'll again give the opportunity to the CSI Udaipur chapter to conduct this particular CSI convention. And we from the Jaipur chapter will be very happy to associate with the Udaipur chapter to organize such a nice event. So with that, and as far as today's topic is concerned, I have given the name to the topic is life, LYFE. It's not LIFE, it is LYFE. Live young, live and young forever. Whether it is possible to become live forever and to become young forever. If you talk about Dr. A.K. Naik sir, mentally he is very much young. Even the age may be around 65 to 70, I am not sure, but whenever we meet, he is a young, energetic, and always enthusiastic, and we learn so many things from. Thank you, Vijay. So, Thank you sir, very much, keeping me young. thank you, sir. I think, and after looking you and observing you, we also get motivated and encouraged how to make ourselves young mentally. Yes, Right. sir. But today's topic, what I want to tell you that it is possible to make young physically also. Like we all know, there is an age factor with all of us. Like after 40, 50, and then 60, 70, the body becomes weaker, and weaker, and till 100 or 120, we need to leave this body, and then we need to go to somewhere. We say, भाई मोक्ष धाम हो गया या पता नहीं स्वर्ग हो गया या नरक हो गया, जाना पड़ता हम लोगों को. So something like that. But what I am going to tell you today, this is a lecture series, and people are thinking that I am going to deliver the lecture. So lecture तो क्या boring होते हैं. I will not deliver any sort of lecture. I'll just share some information, and I will just share some expectations. I will share just some assumptions. Ki whether it is possible to become live even after the death also. So is it possible or not? And whether this technology can help us to make us live and young forever. So I personally feel that if we are able to implement or impart some of the technological parameters in our best experiments, so to some part we can achieve it. And I also analyze some of our ancient stories of our Puranas and Vedas of Indian culture, which give some evidences. After the death also we can survive, and we can again take the rebirth and something like that. And there are examples of you must have heard the name of Yayati, Raja Yayati. Raja Yayati lived for I think more than 1000 years, and he was young. तो वो 1000 साल तक जिए भी और 1000 साल तक जवान भी रहे, तो ऐसा क्या था. तो माना कि वो स्टोरीज में है, हमारी एंशिएंट स्टोरीज है, लेकिन जो भी एंशिएंट स्टोरीज है इंडियन कल्चर की, वो सभी स्टोरीज कहीं ना कहीं आगे जाकर के सच भी हो रही हैं. पुष्पक विमान के बारे में बात करते थे हम लोग कि पुष्पक विमान रामायण में था, रावण सीता माता को पुष्पक विमान से उठा के ले गए थे. इसका मतलब कोई हवा में उड़ने वाला विमान एग्जिस्ट करता था हमारी स्टोरीज के अंदर आज से करोड़ों साल पहले भी. सो अगर वो इतने साल पहले कोई हवा में उड़ने वाला विमान पुष्पक नाम का हमने हमारी स्टोरीज में लिख दिया था इंडियन कल्चर में, एंड दैट विमान कैन बी नाउ. अब वो पुष्पक विमान जो हम लोग एरोप्लेन के रूप में देखते नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं. इसका मतलब जो भी हिंदू धर्म की स्टोरीज के अंदर जो बातें कही गई है, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के साइंटिफिकली लोगों ने प्रूव भी किया है और वो पॉसिबल भी हुआ है. सिमिलरली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ये अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र, इन सब के बारे में बातें की हमने. आज वो अग्निबाण क्या है, हम लोग बम फेंकते हैं, वो अग्निबाण ही है और क्या है.
देन ब्रह्मास्त्र था पहले, आजकल एटम बम है जो बाकायदा मिसाइल्स वगैरह होती है, वो यू जस्ट गिव देम द जीपीएस लोकेशंस। अभी आपने देखा होगा वो कौन सा कहीं का एग्जांपल था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक शायद किसी पर्टिकुलर इजराइल में या ईरान में कहीं धमाका हुआ था, वो एयरपोर्ट से बाहर निकले और उनकी कार को टारगेट करके वहीं पे जाके उसकी कार के ऊपर धमाका कर दिया। तो वो क्या है, दैट इज ब्रह्मास्त्र सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वो ब्रह्मास्त्र के बारे में, अग्निबाण के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग पहले बातें कर चुके किसी जमाने में, और वो बातें आज इंप्लीमेंट भी हो रही है। तो मैंने उसी को थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की है कि अगर ये सब सच है, अगर अग्निबाण सच है, ब्रह्मास्त्र सच है, ठीक है, और ये पुष्पक विमान का एरोप्लेन बनना सच है, तो फिर शायद ये भी कहीं ना कहीं सच होगा हमारे पुराणों से कि मरा हुआ आदमी जिंदा भी हो सकता है, और जो जिंदा आदमी है वो फॉर एवर यंग रह सकता है। तो व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल बेस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स? हम लोग कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, वी हैव बीन स्टडीइंग दिस आईसीटी एंड ऑल दीस थिंग्स, एंड हम लोग बिना लॉजिक के बात नहीं करते। इफ देयर इज नो लॉजिक तो वी डोंट से कि इट कैन हैपन, but I will try to put some logics behind it also. But before going to that topic, LYFE life, let me like first of all tell you some ABCD of the this emerging technologies in ICT. So what is that ABCD? The A stands for, we can say, AI and machine learning. So nowadays we are talking about AI machine learning. What we are doing, the machines can also talk like human, machines can also interact with the humans, machine can also behave like humans, and whatever is being done with the machines and whatever is being observed, the machines can learn all these things, and then they can make their own ideas, they can make their own decisions, and they can also behave like the human beings, and that is called artificial intelligence. Because natural intelligence is only there in the human beings, but in machines are made up by the electronic components. In those electronic components we need to put some external intelligence, that is called artificial intelligence. So in the ABCD of this emerging technologies, this AI is going very popular, and the people have been working on this AI for last more than 50 years, and now because of this AI there are so many things which are happening very easily. So I'll not give lecture on the AI because most of us are from the computer science background, we are very well aware about the AI. But what I want to say, because this ABCD of these emerging technologies, this AI and machine learning is the very most important thing. And then B, we talk about big data and blockchain. So this big data, blockchain, when we talk about big data, it comes variety, velocity, and volume. When there is a huge volume of data, like we say about Facebook or this WhatsApp and all these big companies, they are giving such a social media platforms. There are millions of people are there on the social media platform, and then those millions of people are posting and storing millions of data. So where the data is stored? With the help of this big data. And not only it is the question of storing the data, now how to retrieve the data. So we need to retrieve the variety of the data, voluminous data, in a very good velocity. Velocity means fast. On a click the data is available. So how this all is happening? This is all is happening because of the big data technologies. Then C comes for the cloud computing. So cloud computing, we all are very much aware. Any computing means the use of resources to do some calculations or to do some processing or to provide some information. And for that we need three particular things. One is the hardware, the another one is the platform, or which we can say the operating system, and third one is the softwares or applications. So all these hardwares, platforms, and softwares and applications, they are available over the internet. So that is the concept of cloud computing. Cloud means, cloud is a company or group of companies. You are managing some resources such as hardware or platform or software for we people, and we can get those resources on some rent basis or some agreement basis, and then we can use those services from the cloud. We need not to maintain the infrastructure. We need not to maintain the platform. We need not to maintain or develop any software by our own. We just get all these things, all these resources using the internet as a services from the clouds. So this is the cloud computing technology, and in cloud computing we say that it is 24 hours running. In cloud computing we say that nothing can be deleted from the cloud. Once it is on the cloud, it cannot be destroyed. Why? Because in cloud there is a technology, something like virtualization and all these things, by which what happens, whatever is stored on the cloud, that is not stored in one server, that is stored on the replications, on the duplicate servers. So whenever there is some damage or some problem at the one server, the data can be retrieved from the another copy of the another server. So the data is always there, data is always safe, data is always secure, and data is always available, and data can be accessed from anywhere, any part of the world. So this is the beauty of the cloud computing. And today the concept of this life, live young and live
live and young forever. This also uses the concept of cloud computing. So I'll tell you how it is going to be used. And then this D is for the DNA computing. Live What? forever. Wow. And You want to ask anything? Anybody? And I think I would like to request you to mute yourself so that there is no disturbance. Now comes to DNA computing. So DNA computing is a very nice area, and I'm very much interested in this DNA computing. I heard the name of DNA computing around in 2006, around I think 15-16 years back. And there is a professor, Professor Leonard Adamnan. He is in the University of Southern California, and people say he is the father of the DNA computing. So why we call him the father of the DNA computing, and what he actually did in the form of DNA computing, and how he made the first DNA computer, this is a big story. I would like to tell you just some brief of that. But before going to the DNA computing, let us concentrate on this. What is the actual difference between silicon chip and DNA chip? So silicon chip, what that we call IC, VLSI and all these things. So we all know earlier the computer size was big, size of the room. Then it became very small computers. Then desktop computers came. Then laptop came. Then mobile came. And today what we see at the mobile, there is a I have just purchased the mobile last week only. 128 GB is the this data can be saved there, and 64 GB or something is the RAM in that particular mobile. So how it is happening? Because of this VLSI chips. In VLSI chips, what happens? The core is the transistors or semiconductors. And those transistors and semiconductors are made of some electronic components. And those electronic components in the nut in a normal बोलचाल की भाषा में we can बोल सकते हैं कि copper wire. The base is the copper wire. So all these ICs or VLSIs, all these chips, transistors, semiconductors, they all are made of the electronic components, and electronic components are getting connected with each other by the copper wire. So हुआ क्या in this last passage of the time, in the 50 years, what happened? उस कॉपर वायर की साइज को हम छोटा करते गए. पहले वो था मिलीमीटर में, फिर वो आ गया माइक्रोमीटर में, फिर वो आ गया नैनोमीटर में. नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹. दिस 10⁻⁹ इज अ वेरी, मतलब हम लोग इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप से भी खाली आप लोग 10⁻⁶ तक की चीजों को देख सकते हैं. तो जो माइक्रोस्कोप से हम जो चीजें देखते हैं उसका भी 1000 का अगर आप डिवाइड कर दोगे तो बिकम द नैनोमीटर. तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज क्या हो रहा है कि हमारे मोबाइल में या बहुत ही स्मॉल डिवाइसेस के अंदर भी आपकी फास्ट स्पीड की रैम्स आ गई है, अच्छी हार्ड डिस्क वगैरह बन सकती हैं, और देयर आर फास्ट स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल. सो हुआ क्या कि हम जो कंप्यूटर साइंस में इवॉल्वमेंट होता गया, उस इवॉल्वमेंट में क्या हुआ, धीरे धीरे करते कॉपर साइज आ गया 10⁻⁹ के ऊपर. यानी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं. और इस नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करने के कारण देयर आर सो मेनी बिग जो मिरेकल्स इस कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में पिछले 10 साल में हुए हैं, जिससे कि हम लोग बहुत सारी चीजें करने में सक्षम हो पाए हैं. आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज मिरेकल्स की नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ और कंप्यूटर की साइज छोटी होने से क्या हो गया, क्या फायदा है, क्या नुकसान. हम इसको कनेक्ट करेंगे डीएनए से. तो व्हाट इज दिस डीएनए? डीएनए अगर हमको देखिए, कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कोई साइंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं. डीएनए क्या होता है? आवर बॉडी इज मेड ऑफ सम organs. Organs are made of some tissues. Inside the tissues there are some cells. Inside the cells there is nucleus and all these things. Inside the nucleus there is a DNA. Deoxynucleic acid, something, deoxyribonucleic acid is a full form है. वो अपन लोग बायोलॉजी वाले पढ़ते रहेंगे, हमको उसमें नहीं पूछना. But DNA is the smallest component of our body by which our body is made of. और कई बार हम देखते भी हैं कि अगर मान लो कुछ भी आपको पता करना तो बोलो डीएनए जांच करा लो. किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई थी, कोई पोस्टमार्टम होना, कोई पता नहीं लग रहा. अभी आपको पता, वो जो केस आया था इनका सुशांत सिंह का, तो सुशांत सिंह के केस में भी ये था कि अल्टीमेटली दे गो फॉर द डीएनए टेस्टिंग. तो डीएनए का मतलब वो आपका शरीर का एक बिल्कुल छोटे से छोटा हिस्सा है जिसमें कि आपका बॉडी बन करके डीएनए के थ्रू बनाया है. एंड वो जो डीएनए होता है उसमें होते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स. कुछ वो सीडियन टाइप का होता है, उनको बोलते हैं लोग डीएनए स्ट्रैंड्स. और डीएनए स्ट्रैंड्स में जीटीसीए, एटीसीए, देयर आर सम डिफरेंट और उसमें डेप्थ में जाओगे ना आप, देयर आर सो मेनी बिग थिंग्स. हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप में शायद कई लोगों को पता होगा कि वो जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनकी अगर साइज की बात की जाए, नाउ द कांसेप्ट इज कमिंग कि मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे होगा और जिंदा आदमी लाइफ टाइम के लिए जवान कैसे रह सकता है. और ये अभी हुआ नहीं है, इट्स ऑन द इन्फेंट फेज. और उसके अंदर जो साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं, मैं भी कुछ लोगों से संपर्क में हूँ, लेकिन अभी तक इसका ये मान लीजिए कि 5% भी नहीं हो पाया. लेकिन जब ये 100% हो जाएगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है, वो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ और नहीं मैं कोई यहाँ पे कुछ आपको कुछ खुलासा करने जा रहा हूँ, बट देयर इज डीएनए स्ट्रैंड्स की जो साइज होती है
वो भी 10⁻⁹ मीटर की होती है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। तो डीएनए स्ट्रैंड्स की जो साइज है वो 10⁻⁹ है, और हम भी हमारे कंप्यूटर की सिलिकॉन चिप को छोटा करते 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 कॉपर वायर को लेके आ गए 10⁻⁹ पे। नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग, और नॉट ओनली नाउ वर्किंग, 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, लियोनार्ड आदलमान प्रोफेसर, ही हैज डन अ एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, उस प्रोफेसर आदलमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के अंदर, ही केम विद एन आइडिया कि व्हाई नॉट दिस कॉपर वायर कैन बी रिप्लेस्ड विद द डीएनए स्ट्रैंड्स। अगर कॉपर वायर 10⁻⁹ की साइज में आ चुका है और डीएनए स्ट्रैंड्स भी 10⁻⁹ की साइज में होते हैं, सो इज इट पॉसिबल कि वी कैन रिप्लेस दिस कॉपर वायर विद द डीएनए स्ट्रैंड्स? और अगर कॉपर वायर को डीएनए स्ट्रैंड से रिप्लेस कर दिया गया, अभी पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो पॉसिबल हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, उनके बारे में अपन लोग बात करने का। 1994 में साउथर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर प्रोफेसर आदलमान ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह तैयार किया। उस टेस्ट ट्यूब में उसने ये डीएनए, उसको बोलते हैं डीएनए कंप्यूटर, तो ही ट्राइड टू क्रिएट अ डीएनए कंप्यूटर यूजिंग दोस डीएनए स्ट्रैंड्स इंस्टेड ऑफ द सिलिकॉन चिप। मैंने एक पेपर भी लिखा था 2006 में, उस पेपर का नाम है डीएनए कंप्यूटिंग अ सक्सेसर टू सिलिकॉन। वो पेपर मेरा 15 साल पहले छपा था, और उसके बाद में कुछ ना कुछ हम लोग उसमें काम करते आए हैं। तो उसमें क्या था कि सिंपली प्रोफेसर आदलमान ने क्या किया, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर साइंस, हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम, जिसको हम लोग एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बोलते हैं। एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सोल्व करने के लिए ए रेज़ टू पावर एन, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना टाइम लगता है कि शायद 30 साल लग जाए, 50 साल लग जाए पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो एक 7 पाथ हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम आती है 7 वर्टिसेस की, जिसको सोल्व करने के लिए अगर उस समय के कंप्यूटर साइंस की सुपर कंप्यूटर की बात की जाए, जो कि 1994 का सुपर कंप्यूटर था जापान का, तो वो जो 1994 का जो सुपर कंप्यूटर था, वो जिस काम को, यानी कि 7 वर्टेक्स हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर वो अराउंड कहते हैं कि शायद 30 डेज का टाइम ले रहा था, तो उसी प्रॉब्लम को प्रोफेसर आदलमान ने 1994 के अंदर डीएनए कंप्यूटर के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करी। इट टुक ओनली 30 सेकंड्स, यानी कि 30 डेज का जो काम उस समय का सुपर कंप्यूटर करने वाला था, उस काम को उस प्रोफेसर आदलमान ने 30 सेकंड्स में करके दिखा दिया। कुछ हद तक पूरा नहीं हो पाया, अभी उसका वो एक्सपेरिमेंटल फेज था, लेकिन उसने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए कंप्यूटर बन सकते हैं। डीएनए कंप्यूटर को बनाना कोई ऐसा नहीं कि भाई अपन हवा में बात कर रहे हैं, लॉजिक है। 10⁻⁹ वो जो नैनो टेक्नोलॉजी जो कंसेप्ट आया था ना, क्योंकि 1995 और 2000 के आसपास ही नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, और उसी समय उस साइंटिस्ट ने कोशिश करी। अगर आप गूगल करेंगे प्रोफेसर आदलमान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो आपको सारा मिल जाएगा, या आप गूगल करेंगे डीएनए कंप्यूटिंग या व्हाट इज डीएनए कंप्यूटर्स, तो आपको सब कुछ गूगल के ऊपर मिल जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि डीएनए कंप्यूटिंग की शुरुआत तो आज से 25 साल पहले उस प्रोफेसर ने वहां पे कर दी, और बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं। हमने भी एक रिसर्च कुछ अभी ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के थ्रू की थी, जिसमें कुछ डीएनए कंप्यूटिंग के मॉडल्स के ऊपर कुछ एनालिसिस वगैरह किया था, तो हम भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लगे हुए हैं। सो डीएनए कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट रिप्लेसिंग द कॉपर वायर विद द डीएनए स्ट्रैंड्स। अब देखिए इसमें कुछ चीजें नई नई क्या निकल के आ सकती है, वो भी निकल के आ सकती है। हम लोग बोलते हैं कि एआई, मशीन लर्निंग सब कुछ ठीक है, कि हम कंप्यूटर को लर्न करना सिखा रहे हैं, कंप्यूटर को बिहेव करना सिखा रहे हैं ह्यूमन की तरह, ठीक है, हम कंप्यूटर को सब कुछ सिखा रहे हैं, हम रोबोट्स को पूरा हम एक्टिव भी कर रहे हैं, पर हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर डजंट हैव इमोशंस, कंप्यूटर में इमोशन नहीं होता। दूसरी बात, कंप्यूटर को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम लोग फर्स्ट क्लास में यही पढ़ते हैं, हमारे जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास होता है ना, फर्स्ट डे आईसीटी का, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब इट विल बी रन ओनली विद द इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, अगर लाइट गई, बैटरी गई, बिजली गई, तो कंप्यूटर ऑफ। लेकिन आप और हम जो ह्यूमन है, हम लोग नहीं चलते बिजली से, हम लोग चलते हैं पंच तत्वों से, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, हम उनसे चलते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमको सूरज मिल जाना चाहिए, हमको धरती से खाना मिलता है, हमको हवा मिलती है, हमको आकाश मिलता है, हमको जल मिलता है, हम उनके थ्रू ऑटोमेटिकली रनिंग रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए कंप्यूटर है, उस डीएनए कंप्यूटर को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। डीएनए कंप्यूटर को चार्ज होने के लिए वो चीज चाहिए जो आपको मुझे चाहिए, क्योंकि हम भी डीएनए से बने हुए हैं। सो अगर डीएनए कंप्यूटर पॉसिबल हो पाया, तो इसका मतलब हमको बिना इलेक्ट्रिसिटी का कंप्यूटर मिल जाएगा, जिस कंप्यूटर को सिर्फ हम लोग ये पंच तत्वों की उपस्थिति के अंदर आराम से चार्ज कर सकते हैं। और ये पंच तत्व कब तक रहेंगे? जब तक ये पृथ्वी रहेगी। अब जिस दिन पृथ्वी नष्ट हो गई तब का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक पृथ्वी रहेगी पंच तत्व रहेंगे। जब तक पंच तत्व रहेंगे तो डीएनए कंप्यूटर कैन बी चार्ज एंड कैन बी रिमेन एक्टिव। पहली बात तो ये। दूसरा, हम बोलते हैं कि कंप्यूटर में इमोशंस नहीं होते साहब। अगर कंप्यूटर के सामने किसी की हत्या हो रही है,
कंप्यूटर के सामने किसी की पिटाई हो रही है तो कंप्यूटर को ऐसा, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको जो डेटा स्टोर किया गया उसी के हिसाब से प्रोसेसिंग करके वो आपको आउटपुट देता है। लेकिन कंप्यूटर खुद का लॉजिक या खुद का कुछ बिल्ड नहीं करता है। वट एवर लॉजिक वी हैव गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर उसी के हिसाब से काम करता है। बट यहाँ पे क्या होगा, डीएनए कंप्यूटर सिंस इट इज बेस्ड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड्स, जिस डीएनए स्ट्रैंड से हमारी सेल्स बनी है, हमारे टिश्यूज बने हैं, हमारे ऑर्गन्स बने हैं, उसी डीएनए स्ट्रैंड से अगर कंप्यूटर की कनेक्टिविटी हम लोग तय करेंगे तो शायद, अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं कि शायद कंप्यूटर के अंदर इमोशंस भी उस डीएनए स्ट्रैंड की वजह से आ सके। तो द डे इज नॉट फार कि शायद वो कंप्यूटर भी बाकायदा एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की तरह, तो अपन जब एआई बोल रहे तो एआई नहीं होगा, वो एचआई हो जाएगा। एचआई का मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि जो ह्यूमन में इंटेलिजेंस है वही इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर भी आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। सो ये है डीएनए कंप्यूटिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये डीएनए कंप्यूटिंग अभी माना कि इन्फेंट फेज में है, अभी इसके जो भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं पूरी नहीं हुई है, और अभी आप में से कई लोग जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, वो बिल्कुल अभी मुझे पता है भी हाथ खड़ा कर देंगे कि सर ये तो पॉसिबल भी नहीं है, तो ऐसे होगा वैसे होगा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। देयर आर सो मेनी इश्यूज, हम मानते हैं चैलेंजेस आर देयर, बट उन चैलेंजेस को धीरे धीरे करके अगर हम बोलते हैं कि 5% तक सोल्व कर लिया है, तो 5 का 10% भी होगा, 10 का 15% भी होगा, एक दिन करते करते हम शायद 100% भी उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक ऐसा पिक्चर लाना चाह रहा हूँ फ्यूचर का, इस पिक्चर में क्या होगा कि विद द यूज ऑफ दिस डीएनए कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड वन मोर थिंग इज दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। ये क्लोनिंग भी कोई नई चीज नहीं है, क्लोनिंग आज से 20 साल पहले की जा चुकी है। डॉली बेड का नाम आप सबने सुना है, डॉली शीप, जो कि क्लोनिंग के थ्रू बनी थी। क्लोनिंग के थ्रू बंदर भी बन चुके हैं, क्लोनिंग के थ्रू इंसान का पता नहीं इंसान बना कि नहीं बना, लेकिन क्लोनिंग के थ्रू ऐसे कई एनिमल्स हैं जो कि क्लोनिंग के थ्रू बनाए जा चुके हैं। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि जो आपका नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है सेक्स के थ्रू, वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि वो कुछ उसमें ऐसी साइंस है कि वहां पे शायद आपके ये जो क्रोमोसोम्स वगैरह हैं उनको इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि एक नया विजय सिंह इसी की शक्ल का, इसी के टाइप का एज सामने खड़ा कर दिया जाए। ह्यूमन के ऊपर अभी ये क्लोनिंग नहीं हो पाई है, और अगर हुई भी है तो उसको भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन एनिमल्स के ऊपर डॉली भेड़ का नाम सभी लोग जानते हैं, डॉली भेड़ के अलावा और भी कई, चूहे का क्लोन बन चुका है, बंदर का क्लोन बन चुका है। तो क्लोनिंग इससे मतलब कुछ हद तक क्लोनिंग को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया गया है पिछले 25-30 सालों के अंदर। और अभी भी जो लोग कहते हैं, मैंने कुछ पेपर्स पढ़े थे गूगल के ऊपर कि लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ह्यूमन का क्लोन भी बनाने में क्या कहते हैं सक्सेसफुल तो हुए, लेकिन वो ह्यूमन का क्लोन सर्वाइव नहीं कर पाया। वो शायद क्लोन बनने के बाद में उसको ढंग से कुछ जो भी होता है ना कि भाई एक तो रियल भगवान की जो देन है उसको हम टक्कर कैसे देंगे, लेकिन लोग फिर भी कोशिश करें टक्कर देने की। तो व्हाट आई एम प्रपोजिंग एन इक्वेशन दैट इज कॉल्ड L is equal to DC square. L means this life, live and young forever, and DC square means D stands for DNA computing, first C stands for cloud computing, and the next C stands for cloning. So this DNA computing, cloud computing and cloning, अगर ये तीनों पॉसिबल हो जाए 100% तक, तो उस केस में ये पॉसिबल हो जाएगा, द पर्सन कैन लिव फॉरएवर एंड पर्सन कैन बिकम यंग फॉरएवर। बट इसमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस सभी अप्लाई हैं, मुझे पता है सारा, और मैं कुछ बातें भी आपके सामने जो करूंगा ना, उनको थोड़ा कुछ एविडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है क्या वास्तव में। अभी क्लोनिंग का एग्जांपल लेते हैं अपन, क्लोनिंग और डीएनए कंप्यूटिंग के थ्रू किस प्रकार से क्या क्या काम आगे बढ़ सकते हैं। डीएनए कंप्यूटिंग में क्या होता है कि अगर ये जो डीएनए कंप्यूटर है, ये जो डीएनए चिप है, हमारी भी सिलिकॉन चिप बनती है वीएलएसआई की, और वो वीएलएसआई से कहाँ बन जाएगी, वो डीएनए की चिप बन जाएगी। जो डीएनए की चिप है, द डीएनए चिप विल बी एबल टू नॉट ओनली कॉन्टेक्ट विथ योर बॉडी, बट इट विल बी एबल टू इंटरेक्ट विथ योर बॉडी। एंड इफ द डीएनए चिप इज एबल टू इंटरेक्ट विथ योर बॉडी, देन व्हाट कैन हैपन। से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता, ठीक है, वो बोल नहीं पा रहा, ही इज अ डम पर्सन। नाउ व्हाट हैपेंस, वो जो डीएनए चिप है हम उसको यहाँ पे फिट कर देंगे, और वो जो डीएनए चिप है व्हाट एवर ही वांट्स टू स्पीक, जो उसका माइंड बोलना चाह रहा है वो डीएनए चिप को समझाएगा, और डीएनए चिप में जो डीएनए स्पीकर लगा हुआ है वो उसके बिहाफ पे बोलेगा। तो यानी गूंगा आदमी बोल सकता है। ऐसे अगर बहरा आदमी जो सुन नहीं पा रहा है क्योंकि उसके कान के पर्दे खराब हो गए, हम तो आजकल मशीनें भी लेके आते हैं, मानो मशीनें भी काम नहीं करती, लेकिन हम क्या करेंगे कि वो जो डीएनए चिप होगी, अगर आपके कान में वो डीएनए चिप है, तो जो कुछ भी बाहर सुनाई दे रहा है उसको डीएनए चिप सुनेगी, और सुन करके आपके माइंड को शायद वो समझा देगी भाई बाहर क्या बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से बहरा आदमी सुन भी सकता है। ऐसे अगर बात करें अपन लोगों की, जो अंधा आदमी है देख नहीं पा रहा, तो देखने का काम भी वो डीएनए कैमराज है, तो डीएनए कैमराज क्या करेंगे, वो सामने का सीन देखेंगे, जैसे आज रिकॉर्डिंग हो रही है, वो 3D पूरा देख लेंगे,
और देख करके वो डीएनए कैमरा आपके माइंड को चीज को समझा देंगे भाई किस तरीके से हम लोग व्हाट एवर इज गोइंग या व्हाट एवर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, तो इस प्रकार से अंधा आदमी देख भी पाएगा। तो इसके ऊपर भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि भाई ये डीएनए कंप्यूटिंग के थ्रू क्या हम ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं कि भाई कुछ जो ऑर्गन्स है, ह्यूमन ऑर्गन्स, दैट कैन बी आइदर दे कैन बी मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड, या तो डीएनए चिप लग के चीजों को मॉडिफाई कर दिया जाए या फिर एक डीएनए ऑर्गन ही बन जाए। तो डीएनए ऑर्गन बनने का तो अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ कोई साक्ष्य मिला नहीं है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपल सा थोड़ा सा ये जो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, हो सकता है कि ये बात थोड़ा टाइम ले इंप्लीमेंट होने में, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है जब हम कह रहे हैं कि बहरा आदमी सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है डीएनए चिप के थ्रू, तो क्या वो जो डीएनए चिप हम लोग माइंड में फिट कर रहे हैं, क्या वो डीएनए चिप हमारे माइंड से इंटरेक्ट भी कर सकती है क्या? तो अगर एक बार के लिए मान लें कि डीएनए चिप माइंड से इंटरेक्ट कर सकती है, तो क्या होगा? जब डीएनए चिप माइंड से इंटरेक्ट करेगी तो जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है माइंड का, उस न्यूरल नेटवर्क का, जैसे हम लोग नॉर्मल नेटवर्क में क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई भी कंप्यूटर उस नेटवर्क में एक बार अटैच हो गया तो फिर उस नेटवर्क के सब डेटा को क्या कर सकता है, वो एक्सेस भी कर सकता है, हैक भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, डेटा सेंड, डेटा रिसीव, एनीथिंग कैन बी डन वंस यू आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। तो वंस अवर डीएनए चिप जो कि हमने अलग से इंपार्ट की है बॉडी के अंदर, if that DNA chip is able to interact with the neural network of the body or neural network of the mind, then what can happen? Then it can happen that whatever is there in our mind, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, ठीक है, उस सबको उस डीएनए चिप ने क्या कर लिया, रीड कर लिया, और रीड करके समझ भी लिया। यहाँ तक तो अच्छा है, समझ लिया। समझने के बाद में हमारे माइंड की एक कॉपी उसने स्टोर कर ली अपने आप, और माइंड की एक कॉपी स्टोर करने के बाद में अब क्या हो सकता है, अब अगर उस डीएनए चिप को आप बाहर निकालते हो, इसका मतलब इस डीएनए चिप के अंदर माइंड की आपकी कॉपी है। और दूसरा मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग से। ये भी कंसेप्चुअल फेज में है, एक्चुअल में कब हो पाएगा वी डोंट नो, लेकिन हो जाएगा वी आर श्योर। और क्यों हो जाएगा उसका एविडेंस मैं भी आपको दूंगा थोड़ी देर बाद में। लेकिन मैं भी क्या कहना चाह रहा हूँ कि डीएनए चिप में अगर आपका माइंड का सब कुछ हमने स्टोर कर लिया एक बार, तो स्टोर करने के बाद तो रेप्लिकेट भी हो सकता है। रेप्लिकेट के अलावा वो जो डीएनए चिप में आपने स्टोर किया है वो कहीं किसी क्लाउड के ऊपर स्टोर भी हो सकता है, डीएनए क्लाउड पे। भाई चिप तो उसका डैमेज हो जाए या चिप टूट जाए, हमने क्या किया उस डीएनए चिप से, या फिर सिंपली उस, हम ये जो वायरलेस नेटवर्किंग बोलते हैं अपन लोग, हम वायरलेस के थ्रू शायद हमारे माइंड का जो भी स्टेटस है जो उस डीएनए चिप में है, उस स्टेटस को अपलोड भी कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। और क्लाउड के ऊपर आपके माइंड की एक कॉपी, देयर विल बी ए कॉपी ऑफ योर माइंड एट द क्लाउड विच इज स्टोर्ड। कैसे होगा? जैसे फेसबुक के साथ में होता है, हमारे जो फेसबुक का हमने जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, उसका जो भी स्टेटस है वो फेसबुक के सर्वर के ऊपर स्टोर्ड है। और अगर आप जिस मोबाइल से अपने फेसबुक को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो मोबाइल डैमेज भी हो गया तो हम क्या करते हैं, नया मोबाइल लेते हैं और नए मोबाइल में वापस यूजर नेम पासवर्ड डाल के हमारा जो फेसबुक का सारा स्टेटस है वो नए मोबाइल के ऊपर आ जाता है। तो सेम कंसेप्ट में क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर हमारे माइंड का स्टेटस, यानी कि आज 6:13 तक का स्टेटस जो मेरे माइंड का था, वो डीएनए चिप ने रीड किया, उसको कहीं स्टोर कर दिया। उसमें मेरा पूरा 40 साल का इतिहास, मेरी जो बातें मैं कर चुका हूँ, जो जो मेरे दिमाग में है, वो सब कुछ डीएनए चिप में स्टोर्ड है। एक बार के लिए मान लीजिए पॉसिबल है, वैसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी इसके अंदर, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मान लीजिए अगर ये पॉसिबल है, तो क्या हो गया, हमारे माइंड की एक जो कॉपी है वो कहीं किसी डीएनए क्लाउड के ऊपर स्टोर्ड है। अब बात करते हैं कि साहब मैं इस लेक्चर को लेने के बाद में कहीं बाहर निकला, और बाहर निकलते ही क्या हो गया, मेरे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई कि बॉडी मेरी हो गई डैमेज। अब जैसे ही बॉडी डैमेज हुई, जैसे कि आपका मोबाइल डैमेज होता है या आपका कंप्यूटर डैमेज होता है, टूट जाता है, तो बॉडी डैमेज होने के बाद में गए, उसी को बोलते हैं अपन लोग कि भाई वजह से नहीं तो सुधार गए साहब। लेकिन होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे नया कंसेप्ट, उधर फ्लो पैरेलल क्या चल रहा है, क्लोनिंग। क्लोनिंग में हम क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग में हम अगर आपके डीएनए के थ्रू और आपके क्रोमोसोम के थ्रू अगर कुछ साइंस है उसकी जो भी है, तो वो जो बंदर बनाया या भेड़ बनाया या चूहा बनाया है, वो सब क्लोनिंग के थ्रू पॉसिबल है। अब हम कल्पना करते हैं कि क्या अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि क्लोनिंग के थ्रू अगर मेरी बॉडी का एक भी पार्ट बचा हुआ है, उस पार्ट के थ्रू हमने क्या किया, एक नया क्लोन तैयार किया विजय सिंह जी का, वो नया क्लोन तैयार हो गया। मेरी एक्चुअल बॉडी तो डैमेज हो चुकी थी, लेकिन नया क्लोन तैयार हुआ। और क्लोन में इस समय एक ही कमी आ रही है, जो डॉली भेड़ में आई थी या उस बंदर में आई थी या उस चूहे में आई थी, कि भाई क्लोन में क्या बॉडी तो बन जाती है, लेकिन जो जिस व्यक्ति का क्लोन बना है उसका माइंड उस क्लोन के अंदर नहीं होता है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ पॉसिबल कर लें कि माइंड कैन ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द डीएनए क्लाउड, जो कि 6:13 के पहले का स्टेटस था, वो वहां से लेके क्या कर दिया हमने उसके अंदर क्लोन में, या कोई नई डीएनए चिप ली उसको क्लोन में फिट कर दिया, तो दैट क्लोन कैन अगेन एक्टिव जस्ट लाइक द इनिशियल बॉडी। तो ये कहीं ना कहीं हम अगर तरीके से इस पे काम किया जाए तो ये पॉसिबल है।
बट इससे पहले कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि शायद ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ये कोई होता है क्या, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, मैंने स्टार्टिंग किया था कि पुष्पक विमान हमारे वेदों में, पुराणों में, हिंदू धर्म की किताबों में बताया गया था, और पुष्पक विमान एरोप्लेन के रूप में आज है। जो सीता माता की जो लक्ष्मण रेखा थी, जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल, वो फायरवॉल का कंसेप्ट किसी जमाने में बोला गया था रामायण के अंदर, वो फायरवॉल आज है। हम उसको बोलते हैं एंटीवायरस एंड फायरवॉल, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। हम जो अग्निबाण के बारे में बात करते हैं वो बम के रूप में आज है। हम जो ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करते थे हमारे पुराणों में, वो ब्रह्मास्त्र भी आज की तारीख में क्या कहते हैं, मिसाइल्स के रूप में है। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पुराणों की जो स्टोरीज है, या जो हमारे वेदों के जो पुख्ता सबूत है पुराने वाले, अगर वो आज के जमाने में टेक्नोलॉजिकली प्रूव हो पा रहे हैं, तो ये भी प्रूव होगा। क्योंकि मैं अब आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो आप सभी लोगों को पता है, और जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, जिसमें कि शायद आप में से 99% लोग उसको विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि हमारे पुराणों में लिखी हुई है, हमारे वेदों में लिखी हुई है, और उसको आप में से 100% लोग मानते हैं, जो कि एक पक्का हिंदू है। वो क्या है कहानी? वो कहानी ये है कि जो गणेश जी हैं, गणेश जी अपनी माता पार्वती के बनाए हुए महल के ऊपर पहरा दे रहे थे। इतने महादेव जी आते हैं सामने से, और वो महादेव जी को गणेश जी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करते। जब महादेव जी को गणेश जी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो महादेव जी को गुस्सा आता है, और गुस्सा आके गुस्से में क्या करते हैं, वो गणेश जी की गर्दन को खट से काट देते हैं। और गणेश जी की गर्दन कटते हैं, उनका सर जो होता है वो पूरा पूरा क्या हो जाता है, उसका वो सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्योंकि जब महादेव ने प्रहार किया है, तो प्रहार जाता नहीं है खाली। तो अल्टीमेटली गणेश जी की वहां पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और गणेश जी की मृत्यु जब पार्वती को पता लगा, पार्वती माता को, तो बाहर आई, और बाहर आकर उन्होंने हंगामा कर दिया कि भैया आपने कैसे मार दिया, मेरा पुत्र था। तो बाद में जब बात थोड़ी ठंडी हुई, महादेव जी थोड़ा वापस शांत हुए, तो महादेव जी ने कहा कि अब क्या करें। तो हम सबको पता है, फिर कुछ खोज की गई, और एक हाथी का सर लाया गया, और हाथी का सर लाके गणेश जी के उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर लगा दिया गया। और जब हाथी का सर गणेश जी की बॉडी पर लगा दिया गया, इसको कहीं ना कहीं आप क्लोनिंग से जोड़ सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट। यानी कि हाथी का जो ऑर्गन था, वो एक मनुष्य की शरीर के ऑर्गन के ऊपर क्या कर दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया उस जमाने में। माना कि ये स्टोरी है, और स्टोरी तो पुष्पक विमान की भी थी, स्टोरी तो ब्रह्मास्त्र की भी थी, स्टोरी तो आपकी उसकी भी थी कि शकुनी मामा के जो पासे थे ना, अगर आपको ध्यान हो महाभारत के अंदर, तो शकुनी मामा के पास ऐसा क्या था कि महाभारत में युधिष्ठिर और अर्जुन और ये सब लोग कृष्ण के होते हुए भी हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि शकुनी मामा के पासों में थे बायोलॉजिकल रोबोट्स। शकुनी मामा बोलता था भांजे 6, जैसे वो 6 बोलता था ना, तो जो उसके पासों में जो रोबोट्स थे, बायोलॉजिकल रोबोट्स, वो उन पासों को ऐसे करते थे कि वो बाकायदा 6 आते थे, और इसलिए शकुनी जीतता था। तो एक टेक्नोलॉजी तो उस समय भी थी, हम उसी को कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर उस टेक्नोलॉजी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद में जो गणेश जी का एक्चुअल सर था, जिसमें कि उनका रियल माइंड था मरने के पहले तक का, वो तो डैमेज हो चुका था। तो फिर क्या हुआ? फिर वो कहानियों में लिखा कि ठीक है, महादेव जी ने बाकायदा ऐसा हाथ किया, और फिर क्या हुआ कि वो उनको जीवन दान दे दिया। जीवन दान का मतलब क्या हुआ कि शायद महादेव जी के पास में वो जो क्लाउड था, डीएनए क्लाउड, ठीक है, उसमें से उन्होंने क्या किया, उसमें से उन्होंने बाकायदा वो जो उनकी मृत्यु होने के पहले का स्टेटस था माइंड का, वो उस हाथी के सर के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, और अल्टीमेटली गणेश जी एक नए रूप के अंदर पैदा होकर हमारे सामने आ गए। तो ऐसा ही कंसेप्ट हम यहाँ भी सोच रहे हैं कि जब हमारी बाकी कहानियां कुछ ना कुछ लेवल पे सच होकर आ रही है, तो शायद ये भी सच हो सके कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए, या बॉडी का क्लोन बन जाए, और बॉडी के क्लोन के अंदर जो भी आपका माइंड का स्टेटस आपके मरने के पहले का, वो अगर किसी डीएनए क्लाउड के ऊपर स्टोर था, तो वहां से उसको इधर ट्रांसफर करके उसके अंदर उसको दोबारा एक नया जीवन दान दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से हमने क्या किया कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट में पूरी बॉडी खत्म कर चुका अपनी, उसकी बॉडी रिक्रिएट कर ली हमने क्लोनिंग के थ्रू, और उसका माइंड लेके आ गए हम लोग डीएनए कंप्यूटिंग के, डीएनए क्लाउड के थ्रू। इस प्रकार से व्यक्ति क्या हो गया, वापस एक तरीके से जिंदा होकर आपके सामने आ गया। एंड सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि जब उसकी बॉडी धीरे धीरे डैमेज होती है, हमारा होता है क्या शरीर में, हमारी सेल्स जो होती है धीरे धीरे डैमेज होती रहती है। हम बूढ़े क्यों होते हैं? एज के साथ क्या होता है, आपकी सेल्स डैमेज होती रहती है, सेल्स वीक होती रहती है, और वो सेल्स किसकी बनी हुई है, डीएनए की। तो अगर जो हमारी सेल्स वीक हो रही है, डैमेज हो रही है, तो मान लो 70-80 साल की हो गई, बॉडी हमारी बिल्कुल ऐसी हो गई कि बिल्कुल एक तरह से अब किसी काम की नहीं होने वाली, या फिर हम मरने वाले हैं, ठीक है ना। या फिर अपन जो बोलते हैं कि भाई ये जैसे कोरोना या कैंसर या इस तरह की बीमारियां कुछ लगी, बॉडी से पूरी खराब हो गई। सो अगर ये पॉसिबल हो कि बॉडी का एक नया क्लोन बन जाए, और क्लोनिंग को हम लोग इस डेटा डीएनए क्लाउड से कनेक्ट करके और रियल में रीबर्थ दे सकें, सो कुछ हद तक अपन अभी कंसेप्चुअल लेवल पे हैं, अब ये सभी बातें कर रहे हैं अपन लोग, ये बातें बकवास भी हो सकती हैं, और ये बातें सच भी हो सकती हैं। लेकिन हमको आशा ये है कि जो हमारा आज तक का जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा हुआ है, और जो बातें उन्होंने उस समय कही थी, वो बातें आज हमारे सामने चरितार्थ हो रही हैं। तो शायद ये भी एक पॉसिबल हो पाए कि विद द यूज ऑफ दिस डीएनए कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लोनिंग कंसेप्ट, इफ वी यूज these all concepts collectively and if all those concepts are implementable 100%, माना कि डीएनए कंप्यूटिंग अभी 5% पे है, हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग 100% पे है, क्लोनिंग इस समय 50-50 है।
तो क्लोनिंग में कुछ तो क्लोन बन चुके हैं, लेकिन एक ह्यूमन का क्लोन अभी तक शायद बना नहीं है, या बना तो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए, इसलिए मैंने बोला है L इज इक्वल टू DC स्क्वायर, वो D, C एंड C ये तीनों मल्टीप्लाई पे है, डीएनए कंप्यूटिंग मल्टीप्लाई बाई क्लाउड कंप्यूटिंग मल्टीप्लाई बाई क्लोनिंग। जब क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा 1 हो जाएगा, डीएनए कंप्यूटिंग पूरा 1 हो जाएगा एंड क्लोनिंग पूरा 1 हो जाएगा, तो वो जो 1 में लगे क्या हो जाएगा, लाइफ भी 1 हो जाएगी, मतलब कि यू कैन लिव एंड यंग फॉरएवर। सो दिस वाज द कंसेप्ट आई वांटेड टू टेल यू। और आज का जो टॉपिक था अपना वो यही था कि भाई इमर्जिंग ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, उन इमर्जिंग ट्रेंड्स कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईसीटी में जो आ रहे हैं, उन ट्रेंड्स में क्या क्या चीजें चल रही है। तो मैंने कुछ कोशिश करी है कि आने वाला जो भविष्य 20 साल 25 साल बाद का होगा, जो इंसान लग रहा है एक रेस के अंदर, कि हम किस प्रकार से कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर में एआई लेके आ सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, वो शायद आगे जाकर के एचआई बन जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस। और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं इस डीएनए कंप्यूटर्स को या डीएनए कंप्यूटिंग कंसेप्ट को कहीं ना कहीं इसमें यूज करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड आई जस्ट ट्राइड टू गिव यू सम आइडियाज ऑफ हाउ द use of the DNA computing, cloud computing and cloning can make us live forever and young forever. So किसी को कोई भी इसमें शंका हो, कोई दुविधा हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो इन तीनों ही कंसेप्ट के बारे में वो आराम से स्टडी कर सकते हैं गूगल पे जाकर के। और जो कहानियां मैंने आपको सुनाई है, उन कहानियों के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये कहानियां भी सारी सच है, ये कंसेप्ट भी कुछ हद तक इंप्लीमेंट हो चुके हैं और कुछ इन पे काम होना बाकी है। हमने खाली एक अजम्पशंस किया है, एक्सपेक्टेशन किया है, अभी तक कोई ऐसा दावा नहीं कर रहे कि ऐसा हो गया है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग शायद इसी तरह लगते रहे तो आने वाले 20-25 साल में इस डीएनए कंप्यूटिंग के थ्रू शायद ऐसा पॉसिबल हो कि द पर्सन कैन लिव and person can become alive forever and the person can become young forever. So thank you so much for hearing me so patiently, and ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। आज खाली अपन एक डिस्कशन किया है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और जब इस पर बहस होगी तो और कई चीजें निकल के आएंगी। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Today's lecture was very interesting.